Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Once again, welcome and a very good morning to you all. This is me, Mohammad Rahim. As you people know, students, again we are in class 9th chemistry. The same chapter is going on, Introduction to Chemistry. What the topic we discussed yesterday, that will be shortly discussed now, and after that we will discuss the topic of the day. So before this we discuss many of the molecular species and chemical species, ions, radicals, and all of these atomics, monoatomics, diatomics. Previously we discussed the molecular species that were monoatomic, means the molecule that are made of same one atom, like the noble gases are, and the diatomic like H2O2, HCl, CO, carbon monoxide, like these are made of two atoms, they are known as diatomic molecules. And some of them are polyatomic molecules. Polyatomic molecule means they are made of polyatoms, they are made of many atoms, like the glucose C6H12O6 means they have 24 atoms of 3 different elements. So this is known as a polyatomic. Then we discuss the homoatomic, made of same types of elements. Heteroatomic, made of different types of elements. So the topic of the day is, dear students, today we will discuss the mole, that what mole is. Mole is actually, after mole we will discuss the definition of the mole, mole mass relationship, and formula of the mole. What is mole, how we will define mole, what is the relation of the mole with the mass, and what is the formula to derive, to find out the mole. That formula will be shared in the last. So what is mole? मोल क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. मोल इज़ एक्चुअली यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस. इसको हम ये एक यूनिट है. व्हाट यूनिट इज़ एनीथिंग इन विच वी काउंट एनी क्वांटिटी. यूनिट वो होता है जिसमें किसी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, काउंट करते हैं. किसी क्वांटिटी की, किसी चीज़ की क्वांटिटी को, किसी चीज़ की अमाउंट को, किसी सब्सटेंस की अमाउंट को जब हम काउंट करते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं. तो मोल भी एक यूनिट है. जैसे कि हम टाइम इज़ अ क्वांटिटी विच विल बी मेजर्ड इन सेकेंड्स. So second is the unit of time, like the distance we have, that is a quantity. So the meter or centimeter is the unit of to measure it. Like the mass is a unit and we count it in kg. Kilogram is unit of it. Like the force, we have a quantity and its unit is Newton. So like the speed we have, it has some units. Like the liquids we have, we count all the liquids, they are quantities but we count them in later. So these are the units. यूनिट वो होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं. जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, उसको मीटर या सेंटीमीटर में हम काउंट करते हैं. इसके बाद जो है ना हमारे पास टाइम है, जैसे कि टाइम एक क्वांटिटी है और इसको हम सेकंड्स या मिनट्स में काउंट करते हैं. और इसी तरह फोर्स हमारे पास है. तो ये सब यूनिट्स हैं. इसी तरह मोल भी एक यूनिट है. अब मोल किस चीज़ का यूनिट है? इट इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस. किसी भी सब्सटेंस को जब हम किसी भी यूनिट में काउंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ मोल. द मोल सिंबल एज वेल एज अ मोल. So the mole has well symbol as a mole. मोल को हम मोल भी लिख सकते हैं MOLE, और इसको हम MOL भी लिख सकते हैं as a symbolic. Okay, when we are representing them, its symbol. He is the unit of measurement for amount of substances. So keep remember that mole is unit of measurement for amount of substances. What the value of the mole is? 1 mole is equal to how much?
it is defined as exactly 6.02214076 multiplied with 10 raised to power 23 atoms present in any of any substance. ये जो काउंटिंग दिया यहाँ पर नंबर जो दिया हुआ है 6.022 10 रेज टू पावर मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 23, ये एक्चुअली एटम्स की तादाद है. एक मोल अगर हम किसी चीज़ के किसी सब्सटेंस को का एक मोल हम उठाएं और उस एक मोल के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर 6.022 multiplied with 10 raised to power 23 atoms will be there in that one mole. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं या फिर हम H2O की बात कर रहे हैं, तो H2O का अगर हम एक मोल ले लें, उस मोल के अंदर क्या है, उस मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू पावर 23 एटम्स मौजूद होते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोल. व्हाट मोल इज? मोल इज द एग्जैक्ट नंबर 6.022 multiplied with 10 raised to power 23 present number of atoms are present in one mole. Expression of atomic mass or molecular mass in the terms of gram. What mole is? जब भी हम whenever we are going to express any atomic mass or molecular mass in terms of gram. अब now we have to define what atomic mass is and what molecular mass is. अब atomic mass क्या है, molecular mass क्या है? Atomic mass किसी एटम के मास को बोलते हैं. Atomic mass is the atomic mass is the mass of an atom. एक एटम का मास क्या होता है? एक एटम का मास किसी चीज के अंदर मौजूद क्वांटिटी को, पार्टिकल्स को हम उसी चीज का मास बोलते हैं. एटॉमिक मास क्या है? किसी एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की तादाद या पार्टिकल्स की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं. अब एक एटम के अंदर क्या मौजूद है? एक एटम के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एक एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. सो द नंबर of proton and neutron present in any atom is known as its atomic mass. How much protons are present and how much neutrons are present in the nucleus of an atom, that make the mass of that atom, so that mass will be known as atomic mass. अब इस एटॉमिक मास को हम AMU जो कि इसका यूनिट है उसमें हम काउंट करते हैं कि एटम का एटॉमिक मास इतना AMU है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम बोलते हैं. लेकिन अगर इसी एटम के एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑक्सीजन की एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की एटॉमिक मास हमारे पास 1 बनता है, उसको हम AMU बोलते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास AMU. इसी 1 AMU को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ग्राम्स में कितना आता है, उसको फिर हम मोल का नाम देते हैं. देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल. अब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद होते हैं उन सब एटम्स का एटॉमिक मास को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम मॉलिक्यूलर मास नाम देते हैं. जैसे कि H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. अब इस मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन 2 हैं, दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है. इसका एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को हम कलेक्ट करते हैं, उनको कलेक्टिवली हम मॉलिक्यूलर मास का नाम देते हैं. जब भी व्हेनेवर वी एक्सप्रेस एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, that will be known as a mole. Mole is also called as a gram atom. इसको हम ग्राम एटम भी नाम दे देते हैं क्योंकि हम इसको एटॉमिक मास को एक्चुअली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम में, या फिर इसको हम ग्राम मॉलिक्यूल भी नाम देते हैं बिकॉज वी काउंट द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, या फिर इसको हम ग्राम फार्मूला मास भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ द फार्मूला मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल और एनी एटम. इस तरह इसको हम मोल बोलते हैं. इसको हम whenever we express any atomic mass or molecular mass in the gram, that will be known as a mole.
Definition of the mole will be: the mole is the unit of measurement for amount of substances in the international system of units. Now, what international system of unit means? SI unit. SI unit, internationally, we have a system of units, like the kg is used all over the world. What kg means, what is the second, all over the world, the people are using seconds for the measurement of time. तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम बन जाता है यूनिट्स का. उस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर मोल को भी जो है ना मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को एज अ यूनिट कंसीडर किया जाता है, और ये एक यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. सो द मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट for substances of for amount of substances in international system of units. It is defined as exactly 6.022144076 multiplied with 10 raised to power 23 particles. Particles means atoms are present over there, which may be atoms, may be molecules, may be ions, or may be electrons. Particle means which may be atoms, may be molecule, may be ions, or may be electrons. So what mole is, what the definition of the mole is? Mole is the exact number like the 6.02 multiplied with 10 raised to power 23 particles, which may be atom, molecules, ions, or electrons. Or in other words, we say mole, also spelled as a mole in chemistry, a standard scientific unit for measuring large quantities of a very small entity such as atom, molecules, or other specified particles. मोल जो है ना, जब हम बहुत बड़े क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, इट इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी, इट इज़ अ लार्ज क्वांटिटी. अब इस क्वांटिटी को अगर हम इस क्वांटिटी के एटम्स या मालिक्यूल्स या फिर दूसरे पार्टिकल, स्पेसिफाइड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन की या दूसरे पार्टिकल्स की, अगर हम ग्राम्स में एक H2O को हम एक्सप्रेस करें, तो ये हम स्मॉल एंटिटीज़ में उसको काउंट कर रहे हैं. सो मोल इज़ द specific standard scientific unit of measuring of large quantity in very small entity like the atoms and the others. So this is known as a mole. Example of the mole is very carefully dear students. आपको बहुत carefully ये example थोड़ा attention से सुनना होगा, फिर आपको समझ आएगा कि what the mole is. What is, according to the concept of atomic mass, or in case of molecular mass, is taken in the unit of grams instead of atomic mass unit, hence it becomes easy to measure. हम एटॉमिक मोल को हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम जो है ना ग्राम्स में ले लें, और ग्राम्स में काउंट करना इजी होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. अब किसी एटम का एटॉमिक मास को मालूम करना या किसी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास को काउंट करना इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एज कंपेयर टू ग्राम. अगर हम किसी चीज़ को ग्राम में ज़ाहिर करें तो ग्राम में हम उसको काउंट करें, सो इट विल बी अ लिटिल बिट ईजी फॉर अस टू काउंट इट in grams. So we are counting them while it will be very easy. So thus the atomic mass or molecular mass expressed in terms of grams called 1 mole. जब भी हम किसी atomic mass या molecular mass को terms में grams में काउंट करते हैं, उसको हम 1 मोल बोलते हैं of that substance. और जो है ना इसके लिए हम ये एग्जांपल पढ़ेंगे. जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को, देखो जो स्टूडेंट, हम आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि किसी एटम का एटॉमिक मास काउंट करना डिफ़िकल्ट होता है या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास काउंट करना डिफ़िकल्ट होता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम
उसको उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में तकसीम करते हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं या ग्राम्स में काउंट करते हैं। ग्राम्स में काउंट करना थोड़ा बहुत ईजी होता है एटॉमिक मास में काउंट करने से और मॉलिक्यूलर मास में काउंट करने से। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब हाइड्रोजन हैज़ 1 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के अंदर 1 एटॉमिक मास है। क्यों 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं। तो इसका टोटल मास जो है ना हाइड्रोजन का, वो 1 एटॉमिक मास आता है। इस 1 एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम्स में काउंट करें तो इसको हम 1 ग्राम ऑफ इट, तो इस हाइड्रोजन का 1 ग्राम जो है ना वो 1 मोल होगा। समझ नहीं आ रहा है? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन एक एटम है, इसका एटॉमिक मास क्या है? 1 है। इसका एटॉमिक मास 1 है, सो लिहाजा पूरे हाइड्रोजन को अगर हम 1 ग्राम काउंट करें, बैलेंस पर रख लें और हमें हाइड्रोजन का 1 ग्राम मिल जाए तो उस पूरे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को हम 1 मोल कहते हैं। नॉट 1 हाइड्रोजन, नॉट 1 एटॉमिक। इसका 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, इसका एटॉमिक मास ये जो 1 है, ये अगर 2 ग्राम है तो हमारे पास इसके 2 मोल है, ये अगर आधा ग्राम है तो हमारे पास आधा मोल है। लिहाजा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, लिहाजा इसका 1 ग्राम जो है ना वो 1 मोल के बराबर होगा और इसके 2 मोल जो है ना वो 2 ग्राम जो है ना वो 2 मोल के बराबर होगा। सो द हाइड्रोजन हैज एटॉमिक मास 1, so 1 gram of it is 1 mole, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम उसको बोल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की एटॉमिक मास क्या है? 16 है, क्योंकि इसके अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है ना वो 16 है और इसके 16 ग्राम्स 1 मोल के बराबर होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इसका 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है, इसके 16 ग्राम 1 मोल के बराबर होंगे। हाइड्रोजन H2 का एटॉमिक मास क्या है? ये एक मॉलिक्यूल बन गया। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 2 है और इसका 2 ग्राम 1 मोल होगा। मॉलिक्यूल है, 2 एटॉमिक मास है इसका और इसका 2 ग्राम जो है ना वो 1 मोल होगा। और O2 फिर मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है ना वो 16 है, तो दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा? 32 होगा, तो इसके 32 ग्राम जो है ना वो 2 मोल होंगे। एक का 1 मोल है और 2 का 2 मोल है, डबल हो गया तो 2 मोल। इसी तरह हमारे पास H2O है, हाइड्रोजन, हमारे पास 2 हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास कितना है? 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 का 1 है, तो 2 का H2 का एटॉमिक मास हमारे पास 2 है और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 है। 2 + 16 वो 18 आ जाएंगे। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास 18 है और इस H2O का 18 ग्राम हमारे पास 1 मोल होगा। समझ आ रहा है? H2O हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 का एटॉमिक मास 2 होगा। ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 और 2 इस ऑक्सीजन के 2 एटॉमिक मास है 16, 16 + 18 क्या होंगे? 16 + 18, 16 + 18 16 + 2 होंगे 18, तो 18 मॉलिक्यूलर मास है और इसी मॉलिक्यूलर मास का अगर हम 18 ग्राम ले लें तो ये एक 1 मोल के बराबर होगा। सो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 हैज़ अ मास ऑफ 12 ग्राम एंड कंटेन्स दिस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक मोल ऑफ कार्बन, अगर हम कार्बन का 1 मोल ले लें, कार्बन 12 विच इज द आइसोटोप ऑफ द कार्बन, अगर हम इस कार्बन 12 का 1 मोल ले लें तो इसके अंदर 12 ग्राम मौजूद हैं, सही है? और उस 12 ग्राम के अंदर 12 ग्राम क्या है? 12 ग्राम इज एक्चुअली 1 मोल और 1 मोल हमारे पास कितने एटम्स के बराबर होता है? इतने एटम्स के। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑफ कार्बन एटम्स विल बी देयर। इसी तरह अगर हम H2O का
18 ग्राम ले लें तो 18 ग्राम के अंदर 1 मोल मौजूद है और 1 मोल के अंदर इतने एटम्स मौजूद है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी अगेन. मोल मास रिलेशनशिप. मोल मास रिलेशनशिप के अंदर क्या है? यू कैन ओपन योर पेज नंबर 33 ऑफ योर बुक्स. 1 मोल, 1 मोल के अंदर क्या होता है? 1 ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो फर्स्ट दिया हुआ है. 1 ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. अगर हम एलिमेंट्स का 1 ग्राम ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, अगर हम कार्बन का 12 ग्राम ले लें तो ये 1 मोल के बराबर होगा. अगर हम सोडियम का 23 ग्राम ले लें तो ये 1 मोल के बराबर है, क्योंकि इसका सोडियम का एटॉमिक मास क्या है और कार्बन का एटॉमिक मास क्या है. तो ये 2 एलिमेंट्स है, इसका एक एक एटम हमने उठाया, उसका एटॉमिक मास हमने देखा, तो उसका एटॉमिक मास को हमने ग्राम में काउंट किया. 12 एटॉमिक मास है तो उसका एटॉमिक मास जो है ना उसका ग्राम में हमने काउंट किया. 12 ग्राम उसका 1 मोल के बराबर होता है. इसी तरह सोडियम का 23 एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक मास को हमने ग्राम में काउंट किया, तो इसका ग्राम जो है ना वो 1 मोल के बराबर. इसी तरह अगर हम किसी मालिक्यूल का मालिकुलर मास जो है ना हम ग्राम में काउंट करें तो 1 ग्राम ऑफ मालिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस क्या होगा? अब देखिए मालिक्यूल है H2O हमारे पास. H2O का मालिकुलर मास क्या है? 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया, तो इसका टोटल एटॉमिक मास क्या हो गया? मालिकुलर मास क्या हो गया? वो 18 हो गया. 18 को अगर हम ग्राम में ले ले तो 18 ग्राम ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 1 मोल. सही है. इसी तरह हम CO2 कार्बन का हमारे पास क्या है और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 32 बन जाएंगे और कार्बन हमारे पास 12 है. एक कार्बन 2 ऑक्सीजन प्लस कर दें, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 को O2 को 32 को प्लस करो आपस में तो ये 44 बन जाएगा. 44 इज द मालिकुलर मास ऑफ CO2, बट इफ वी काउंट दिस 44 इन ग्राम्स दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल. इसी तरह हम 1 ग्राम फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंसेस है, तो ये फिर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, फिर इससे बड़े मालिक्यूल CaCO3 है, इसको हम काउंट करते हैं कैल्शियम का, कार्बन का और O3 का. जब हम काउंट करते हैं तो ये 30 ग्राम 100 ग्राम्स बन जाते हैं. 100 ग्राम्स को 100 मालिकुलर मास है इसका, और इसको जब हम काउंट करेंगे ग्राम में और ये इक्वल होगा 1 मोल के. इसी तरह सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम जो है ना वो 1 मोल के बराबर होगा. इसी तरह ग्राम आयोनिक वेट, अगर हमारे पास कोई एटम आयंस की फॉर्म में हो और उसके एटॉमिक मास को हम काउंट करें, आयोनिक मास को अगर हम काउंट करें तो आयोनिक वेट उसका फिर ग्राम में हम कन्वर्ट करें तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल. आई होप इट इज easy. फार्मूला ऑफ मोल, अ सिंपल रिलेशन दैट इज यूज्ड टू इंटरकन्वर्ट द मोल मास रिलेशन विच गिवन बाय. अब देखो हमारे पास पेज नंबर 31 पर हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है कि मोल को हम किसी चीज़ के मोल को किस तरह मालूम करेंगे. मोल जिस चीज़ को हम मालूम करेंगे उसको हम इस साइड पर लिखेंगे. देन विल बी इक्वल साइन गिवन मास. गिवन मास का मतलब यह है कि आपको मास दिया गया है, H2O आपको दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि H2O के अंदर कितने मोल मौजूद है, या आपको C6H12O6 ग्लूकोज दिया गया है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन C6H12O6. अब क्या है उसको हम गिवन मास बोलते हैं. जो आपसे पूछा जा रहा है जिस मास का उसको गिवन मास बोलते हैं. फॉर एग्जांपल CO2 आपको दिया गया है या NaCl दिया गया है, आपको HCl दिया गया है. HCl इज गिवन एंड इट इज रिक्वायर्ड दैट हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन HCl, उसको हम गिवन मास बोलते हैं. सो गिवन मास को आपने ऊपर लिखना है, फिर उसी गिवन मास को आपने फॉर एग्जांपल आपको C6H12O6 दिया हुआ है तो C6H12O6 का मालिकुलर मास, फिर उसका मास फार्मूला या उसका आयोनिक मास या उसका एटॉमिक, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका एटॉमिक मास लिखना है, मालिकुलर फॉर्म है तो मालिकुलर मास लिखना है, फार्मूला मास फार्मूले की फॉर्म में तो मास फार्मूला फॉर्म उसका लिखना है, और आयोनिक मास में है तो उसका आयोनिक मास. टोटल कितना दिया हुआ है गिवन मास? जो गिवन मास है आपको दिया गया है उसी गिवन मास के जो आपके पास जितने एटॉमिक मास बनते हैं उसको फिर जो है ना आपने उसको नीचे लिखना है और जो गिवन मास है उसको ऊपर लिखना है.
तो गिवन मास में हमारे पास क्या आता है, जो आपको जो एटम दिया जाता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 255 ग्राम्स, जितना ग्राम आपको दिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे आपको जो मालिक्यूल या जो एटम या जो कंपाउंड आपको दिया जाता है उसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखना है, फिर उनको एक दूसरे पर डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आपके पास मोल आ जाएंगे। दिस इज द लास्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ टुडेज। डियर स्टूडेंट, देयर इज एग्जांपल नंबर there is an example of this formula that we will discuss in the next lecture inshallah. Hope you understand this mole. It is a little bit difficult. First read, study your book again and again. After that listen the lecture. I hope you will understand it. If there is any confusion, you can comment me in comment box, and you can contact me with me on WhatsApp. My WhatsApp number is present in the group. And if you misplace this lecture, this video lecture, you can watch it later on my YouTube channel, Mohammad Reem Khan Official. So this will be hopefully you understood it, you will understand it. So this is mole, and this is the end of today's topic. Till next topics, thanks to all of you, and Allah Hafiz.